نفیسہ شاہ, مسٹر احسان اللہ رکی, مسٹر مجاہد علی, مسٹر مختار احمد, مسٹر محمد خان, مسٹر محمد افضل کوکر, میاں ریاض حسین پیرزادہ, مسٹر آفتاب شعبان میرانی, مسٹر عمران خٹک, مسٹر محمد اکرم چیمہ, سردار ایاز صادق, مس سمینہ مطلوب, مس مہناز اکبر عزیز, مسٹر نور عالم خان, مسٹر سیف الرحمان, مس اندلیپ عباس, مسٹر محمد یعقوب شیخ, مسٹر محمد اقبال خان has requested for the grant of leave. Is leave granted? Granted. معزز ممبران, آپ کو مطلع کیا جاتا ہے کہ جن ممبران صاحبان نے الیکشن کمیشن میں اپنے احساسات کی تفصیلات جمع نہیں کرائی ان کی رکنیت معطل ہو چکی ہے, لہذا ان ممبران سے گزارش ہے کہ اپنی معطلی کی نوٹیفیکیشن کو الیکشن کمیشن سے بحال کروائیں, اور جب تک ان کی رکنیت بحال نہیں ہوتی وہ اسمبلی کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکتے. آئٹم نمبر 2, کالنگ اٹینشن مس نفیسہ عنایت اللہ, مسٹر علی نواز, راجہ خرم شاہ نواز. جی نفیسہ عنایت اللہ. السلام علیکم جی. تھینک یو اسپیکر صاحب. I beg to invite attention of the Minister for Federal Education, Professional Training, National Heritage and Culture to a matter of urgent public importance regarding lack of government's soft conventional training skill in Islamabad causing grave concern among the public. اس کے اوپر جی میرا جو کنسرن جی ایک منٹ, آپ نے موشن موو کروایا. وجیہ اکرم جی, وجیہ اکرم, بریف اسٹیٹمنٹ پلیز. جی شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب, جو کوشچن میں ان کے کالنگ اٹینشن میں جو یہ ایکچولی پوچھنا چاہ رہی ہیں وہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ فریم کرنے میں ان سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ایشو تھا اس میں, جو میں نے پھر ان سے جا کے پوچھا تو پھر انہوں نے مجھے کمپلیٹلی اس کو ایکسپلین کیا. جو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ اسلام آباد کے سکولز میں, رورل ایریاز میں خاص طور پر سافٹ سکلز کی بجائے وہ سکلز جو ہیں وہ پوچھنا چاہتی تھیں کہ جیسے سلائی کڑھائی اور کوئی ایسے سکلز جو کہ بچیاں جن کو وہ دیے جا سکیں اور ان کو اکنامکلی امپاور کیا جا سکے اور وہ کورسز وہ سیکھ سکیں. تو اس کا جواب یہ ہے جی کہ نیفٹیک جو ہے وہ ایک ایپیکس باڈی ہے جس کا کام ریگولیٹ کرنا اور اس کے علاوہ کریکولم بنانا اور جتنے پورے ملک میں جو سکلز دیے جا رہے ہیں ٹیفٹاس کے اور ان کا کریکولم بنانا, ریسورس ایلوکیشن کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ریگولیٹ کرنا اور اس کو دیکھنا. تو اسلام آباد میں جو کنونشنل سکلز ہے اس کی ایک کمی محسوس کی گئی. ہم نے جو PC1 اس کے لیے بنایا تھا اس میں جو شہروں میں جو بڑے شہر ہیں ان کے لیے صرف جو ہائی ٹیک ٹریڈز ہیں ان کے لیے وہ انکلوڈ کیا گیا تھا اس میں. لیکن اب میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا اور اس سے پہلے ہی PC1 بھی ہم ریوائز دے چکے ہیں, جو کہ اب نیکسٹ جو بیچ ہوگا اس کے اندر جو اسلام آباد میں 56 انسٹیٹیوشنز جو ابھی فی الحال جو کہ نیفٹیک کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں اور وہ یہ سکلز دے رہے ہیں اس میں ان کو کنونشنل ٹریڈز کو بھی شامل کیا جائے گا اور وہ نیکسٹ بیچ سے انشاءاللہ شروع ہو جائیں گے. مس نفیسہ عنایت اللہ خان خٹک ٹو آسک ون کوسچن. جی میرا سوال ہے کہ آپ نے صرف اسکول کا ذکر کیا, میں ان خواتین کی بھی بات کر رہی ہوں جو دیہاتوں میں رہتی ہیں, بیوہ ہو جاتی ہیں چھوٹے بچوں کے ساتھ, یا ایسی بچیاں جو اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جاتی ہیں کیونکہ آج کل 3rd ڈویژن کی بچیوں کو کالج میں داخلہ نہیں مل رہا. تو یہ بچیاں اگر اپنے علاقے میں گاؤں میں بیٹھ کر اسکل سیکھ سکیں. 18ویں ترمیم سے پہلے یہ جو سافٹ یہ اسکل سینٹرز جو تھے سرکاری پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے. 18ویں ترمیم کے بعد جب یہ سارا کچھ صوبوں کے پاس چلا گیا, اسلام آباد کا شہر بالکل سوکھا رہ گیا. یہاں ہمارے پاس دیہاتوں میں کوئی ایسا ادارہ سرکاری نہیں ہے جس میں کہ خواتین کو اسکل سکھایا جائے. کچھ NGOز نے پرائیویٹ کھولی ہیں لیکن ان کا معیار اتنا نہیں اچھا کہ وہ خواتین اس کو بازار میں بیچ سکیں.
सकें और मुनाफा कमा सके। तो इसलिए मैं स्कूल्स के अलावा मैं उसकी बात कर रही हूँ कि जिस तरह अगर मैंने 11 साल पंजाब में लाहौर पिंडी में काम किया है, नाज सिनेमा के पीछे एक सेंटर है जी, आपके शमसाबाद में है, इसी तरह के ये सेंटर सरकारी इस्लामाबाद में क्यों नहीं खुले जाते, और या फिर जो आपके प्राइवेट सेंटर्स हैं जिनका काम म्यारी नहीं है उनकी मॉनिटरिंग नेफ्टेक के अंडर आ जाए, ताकि हमारी आवाम जो इसके लिए उसको अप्रोच भी हो, वो सीख सके और अपना कमा के खुद कफील हो सके। तो ये मेरा जी सवाल है, इसके लिए ऊपर आपकी क्या अकरम मैडम। स्पीकर साहब, इस्लामाबाद में एक गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन जिसमें कि हॉस्टल भी है और उसमें 16 कोर्सेज इस वक्त नैफटेक करवा रहा है। विमेन वेलफेयर डेवलपमेंट सेंटर G7 में है जिसमें 4 कोर्सेज इस वक्त करवाए जा रहे हैं। एक पाए टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जिसमें कि 12 कहू में वो वेब डिज़ाइनिंग और मोबाइल एप्लीकेशंस ये कोर्सेज करवा रहे हैं। उसके अलावा रूरल इसमें एक इंटरनेशनल करियर सेंटर सुहान में है जिसमें डिजिटल मार्केटिंग, अमेज़ॉन वर्चुअल असिस्टेंट्स, इसके प्रोग्राम्स जो हैं वो करवाए जा रहे हैं। उसके अलावा भी मज़ीद इसके अंदर एक मदरसा है जी, फैज़ुल इस्लाम मदरसा, इसमें एयर कंडीशनिंग और इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन का करवाया जा रहा है। तो ये वाले कोर्सेज ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी अवेलेबल हैं, लेकिन मज़ीद मैंने जिस तरह से बताया कि ये जो रिवाइज PC1 है ये नेक्स्ट बैच के बाद शुरू हो जाएगा और उसमें इस्लामाबाद में जितने जो रूरल इलाके हैं उसके अंदर कन्वेंशनल ट्रेड्स देने के लिए भी इंतज़ाम होगा। उसके अलावा जो हमने एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है जी मैट्रिक टेक के नाम से, वो भी 25 स्कूल्स के अंदर आइडेंटिफाई करके 8th के बाद वो एक स्ट्रीम जो है वो अलहदा हो जाएगी जिसमें कि टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी और उसमें रूरल इलाके भी शामिल हैं और उसमें हमारे जो अर्बन है वो भी शामिल हैं और उसमें कन्वेंशनल और हाई टेक ट्रेड्स वो दोनों शामिल किए जा रहे हैं। थैंक यू। मिस्टर अली नवाज अवान टू आस्क वन क्वेश्चन। साहब, वजिया ने जो जवाब दिया और काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ मैं इससे, बट एक चीज़ सर ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपने देखा है कि लिटरेसी लेवल तो बहुत नीचे है, पर अगर स्किल्ड देखा जाए तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा स्किल्ड लेबर अवेलेबल है। पर होता यह है कि जब बाहर से कोई भी डिमांड आती है, पर क्योंकि पाकिस्तानी होते स्किल्ड हैं पर उनके पास कोई डिग्री नहीं होती, कोई उससे रिलेटेड उनके पास कोई सर्टिफिकेशंस नहीं होती या एक्रेडिटेशंस नहीं होती हैं, तो उसकी वजह से उनको रॉ लेबर के तौर पे बाहर जाना पड़ता है। होते वो स्किल्ड हैं, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस पूरी की होती है। तो मेरा सिर्फ ये वजिया पार्लिमानी सेक्रेटरी से सिर्फ ये है कि इस प्रोसेस को वो कहाँ लेके गए हैं कि वो लोग हैं उनको 1-2 हफ्ते महीने का कोर्स करा के उनको सर्टिफाई कर दिया किया जा सके, जो वो बाहर जाएं। वो पाकिस्तान के लिए आपको पता है रेमिटेंस पाकिस्तान की माशाल्लाह बढ़ रही है। अगर हम स्किल्ड लेबर यहाँ से भेजेंगे जो सर्टिफाइड भी होगी, जिसके पास कोई ना कोई डिग्री भी होगी, तो आप देखिएगा इसमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। थैंक यू जी। वजीमा अकरम साहब, ये इसी ज़रूरत को समझते हुए नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाई गई, क्योंकि पहले होता वाकई ऐसे था कि जो यहाँ से कोई प्लम्बिंग या इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करके अगर कोई गए भी हैं, वो छापे खाने बने हुए थे जिसमें वो सर्टिफिकेट्स बांटे जाते थे। तो वो ऐसा वहाँ जाके वो अपने स्किल के मुताबिक काम करने की बजाय पत्थर कूटने का काम ही करते थे। तो नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल जो बनाई गई है उसका काम यही होगा कि वो इन इंस्टीट्यूशंस को जो ये स्किल्स दे रहे हैं उसको एक्रेडिट करेंगे। उसके अलावा हमने इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन के लिए भी कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके साथ नेफ्टेक वो मिलके काम कर रहे हैं और वो भी हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रजिस्टर करेंगे और एक्रेडिट करेंगे। जी, राजा खुर्रम शहजाद टू आस्क वन क्वेश्चन। खुर्रम जी, आइटम नंबर 3 मिस नफीस इनायतुल्लाह खटक, राजा खुर्रम शहजाद जी, टू मूव आइटम नंबर 3। नफीस इनायतुल्लाह खटक। I beg to move for leave to introduce a bill to comprehensively manage and regulate water resources in Islamabad, the Islamabad Water Conservation Bill 2022. मिनिस्टर फॉरेन शौकत साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी फॉर इंटीरियर, डू यू अपोज इट? सर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मेंबर साहिबा से कि इसको ज़रा वजाहत कर दें कि ये इस बिल के जरिए क्या अमेंडमेंट करवाना जी मैडम, ये बिल क्या है बताए, एक्सप्लेन कर ले। इस बिल में क्या? नफीस इनायतुल्लाह खटक जी, मेरा बिल जो है ये इस्लामाबाद में हमारा जो पानी है इस्तेमाल का,
मैं यहाँ 73 से रह रही हूँ, आज तक टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ी थी. अब इस्लामाबाद में भी कराची की तरह टैंकर्स आ गए हैं, क्योंकि बोरिंग आवाम ने इतनी ज़्यादा कर ली है, वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया. हमारे जो घरों में पानी इस्तेमाल होता है वो सीवरेज में सारा जा रहा है और वो वेस्ट हो रहा है, जबकि बाहर मुहज़्ज़ब ममालिक में उसको रिसाइकल किया जाता है. इसी तरह हमारे जो रेन हार्वेस्टिंग है उसकी कोई इंतज़ाम नहीं है. हमारी नहरों में जो स्ट्रीम्स में पानी है वो भी सारा ज़ाया जा रहा है. तो उसमें भी स्मॉल डैम्स ब्लॉक्स के साथ किए जा सकते हैं, रेन हार्वेस्टिंग के ऊपर, छोटे डैम्स के ऊपर. इसके ऊपर एक इस्लामाबाद के लिए कॉम्प्रिहेंसिव ये बिल बना है कि इस पानी को कैसे बचाएं, और जो 2025 का जो ये है पेशन गोई कि पाकिस्तान में पानी की कमी होगी, उसको अभी से तैयारी करें ताकि हमें पानी की किल्लत के मसाइल ना पेश आए फर्दर. प्लीज जी शौकत साहब प्लीज. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. मैं अपनी ऑनरेबल मेंबर साहिबा और जो और मेंबरान साहिबान ने ये बिल पेश किया है, इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि एक अच्छा बिल है. हम इसकी सपोर्ट करते हैं और कमेटी की तरफ भिजवाने की सिफारिश करते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर इस पे बैठ के काम करें और एक कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बना के जो है वो दोबारा जो है सेशन में पेश की जाए. हम सपोर्ट करते हैं जी. सपोर्ट करती जी. किधर है? Now I put the motion to the House. The question that the leave to introduce a bill to comprehensively manage and regulate water resources in Islamabad, the Islamabad Water Conservation Bill 2021 be granted. All those in favor of it may say aye. All those say no. I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Ji Nafisa Inayatullah Khattak, please. To move item number 4. I beg leave to move for leave to introduce a bill to comprehensively manage and regulate water resources in Islamabad, the Islamabad Water Conservation Bill 2022. The bill is question stand introduced. Item number 5. Dr. Mehreen Razak Bhutto. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move for leave to introduce a bill to make provisions of specifically criminalize acid and burn related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offense and for matters connected therewith with and incidental thereto. The Acid and Burn Crime Bill 2022. Minister for Interior, do you oppose it? जी शौकत साहब. जी सर जरा वजाहत कर दें इस बिल के हवाले से भी. तो जी प्लीज अपना बिल एक्सप्लेन थैंक यू करें. मिस्टर स्पीकर. मिस्टर स्पीकर साहब, मेरा जो बिल है वो एसिड अटैक्स के हवाले से है. सर, UNFPA की रिपोर्ट के मुताबिक 32% से ज़्यादा ख़वातीन पाकिस्तान में फ़िज़िकल वायलेंस का शिकार होती हैं. सर, इस बिल में मैंने एसिड अटैक्स के हवाले से बात की है कि इस्लामाबाद की टेरिटरी में कोई ऐसा बिल नहीं है जिसमें हम लोग एसिड अटैक्स को रोक सकें या जिन पे एसिड अटैक होता है उनकी रिहैबिलिटेशन की हम बात कर सकें. सर, इस बिल में मैंने जो विक्टिम है उसके इंटर्म रिलीफ which includes coverage of medical expenses, damages, monetary relief in case of loss of earning. अगर कोई अपनी नौकरी खो देता है तो उनके लिए बात की है. सर, punishment for attempting to victim, सर इसकी बात की है. गवर्नमेंट टू मेक फैसिलिटीज़ फॉर द पेशेंट. और सर इसका जो ट्रायल होगा वो 60 डेज़ के अंदर होना चाहिए, उसकी बात की है. और अगर कोई विटनेस है तो उसके प्रोटेक्शन की भी इस बिल में बात की गई है. और सर इसकी अवेयरनेस के हवाले से बोर्ड की कॉन्स्टिट्यूशन की भी बात की गई है. और सर विक्टिम को फैसिलिटेट करने के लिए एक फ़ंड भी क्रिएट किया जाए ताकि अगर वो किसी भी हॉस्पिटल में जाता है तो उसके पास इतने रिसोर्सेज हों कि गवर्नमेंट उसको उनके ऊपर वो खर्च कर सके. और बेसिकली इसमें सर रिहेबिलिटेशन है. और सर ये एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ वायलेंस है. तो सर ये जेंडर बेस्ड है. मेरी इस हाउस से गुजारिश होगी कि इस बिल को जो है वो एक्सेप्ट किया जाए और या फिर कमेटी में भेजा जाए फॉर डेलिब्रेशन के लिए. लेकिन सर इस्लामाबाद की टेरिटरी में इस किस्म का कोई बिल नहीं है जिससे हम एसिड अटैक्स को रोक सकें. जी शौकत साहब. शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब. ये एक अच्छा बिल है जो अच्छी बात होती है, चाहे वो हुकूमती अराकीन पेश करें या अपोजिशन वाले, हम उसकी सपोर्ट करते हैं. हम कमेटी की तरफ भिजवाने की सिफारिश करते हैं. जी डॉक्टर मेहरीन रज़ाक भुट्टो मुंह करें अपना प्लीज.
Sir, I rise to introduce a bill, the Acid and Burn Crime Bill 2022, to leave the grant. Now I put the motion to the House. The question that the leave to introduce a bill to make provision to specifically criminalize acid and burn-related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offences and for matters connected therewith and incidental thereof. This acid burn criminal bill 2021 be granted. All those in favor say aye. All those that say no. I think ayes have it. The leave to introduce the bill is granted. Item number 6. Dr. Marina Zagbutto, please. Sir, introduce हो गया? जी, the bill is जी bill move करवा. Sir, I rise to move to introduce the bill to make provision of specifically criminalize acid and burn related violence by providing fair and speedy trial of such heinous offence and for matters connected therewith and incidental thereto, the Acid and Burn Crime Bill 2022. The bill in question stand introduced. Item number 7. Mr. Khurram Dastagir, Ms. Shaza Fatma Khwaja, Ms. Rumina Khurshid Alam. Ji, Khurram Dastagir sahab. Thank you, Mr. Speaker. I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2022, amendment in Article 24A. Ji, Minister sahab, do you oppose it? Madam. जी थैंक यू जनाब स्पीकर मोहतरम अपोजिशन के मेंबर ने जो बिल पेश किया है ये पाकिस्तान के आइन के अंदर आर्टिकल 24A को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं कि जो ख़वातीन के विरासत के बुनियादी हकूक़ हैं उनकी पासदारी हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो आइन में जितने भी हकूक़ दर्ज किए हैं उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं। इस ज़िमर के अंदर हमने कानून साजी भी की है, पार्लियामान से इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट को पास करवाया है जिसके अंदर डीसी के पास ये इख्तियार है कि ख़वातीन की विरासत को मुंतकिल करें। जी हमें हर ऐसे बिल को सपोर्ट करते हैं जिसके अंदर ख़वातीन की विरासत की एक्सप्लेन करें ये क्या बिल आपने क्या बिल। शुक्रिया जनाब स्पीकर। ये एक सतर का बिल है। आइन की शिक नंबर 24 में एक जुमला हमें ऐड करना है जो कि पाकिस्तान की शहरी ख़वातीन के जो वरासती हकूक़ हैं उन जो ऑलरेडी मौजूद हैं कानून में उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तो ये बिल के टोटलिटी ये है कि राइट ऑफ 24A, राइट ऑफ वुमेन टू इनहेरिटेंस, नो वुमन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हर शेयर फ्रॉम इनहेरिटेंस इन पाकिस्तान। और ये आइनी तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत इसलिए है जनाब स्पीकर कि क़वानीन की मौजूदगी के बावजूद हम देखते हैं कि डरा धमका के फिजिकल वायलेंस भी होता है, सोशल प्रेशर भी है, कोएशन है। इसके ज़रिए जो ख़वातीन के वरासती हकूक़ हैं उन्हें छीना जाता है। और इससे पहले जनाब स्पीकर 2011 में जो एक बिल इसी ऐवान ने पास किया था, प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमेन प्रैक्टिसेस क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, उसमें 498A का सेक्शन ऐड किया गया था जिसमें कहा गया कि जो किसी भी खातून को उसके वरासती हक से महरूम करेगा उसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन इस बिल को इंट्रोड्यूस करने का यहाँ मकसद जनाब स्पीकर ये है कि ख़वातीन का जो वरासती हक है वो उसके ख़ानदान के मर्दों की तरफ से खैरात नहीं है, वो उसका एक बुनियादी शहरी और कानूनी हक है। तो इसीलिए मेरी इस्तदा होगी कि इस बिल को कमेटी में भेजा जाए ताकि पाकिस्तान की ख़वातीन के हकूक़ का मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ हम कर सकें। जी हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद के स्टूडेंट्स को वेलकम करते हैं जो यहाँ गैलरी में बैठे हैं। जी खुरम साहब वो चूँकि सपोर्ट कर रही है तो मैं हाउस के सामने पुट करता हूँ। नो आई पुट द मोशन टू द हाउस। द क्वेश्चन रेड द लीव टू इंट्रोड्यूस अ बिल फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2021 आर्टिकल 24A be granted. All those in favor of it may say aye. All those that say no, I think ayes have it and the leave to introduce the bill is granted. Item number 8. Mr. Khurram Dastagir. Thank you, Mr. Speaker.
it is my distinct honor to introduce a bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution Amendment Bill 2022, amendment in Article 24A. The bill in question stand introduced. Item number 9, Mr. Muhammad Jamaluddin to move item number 9. Ji Maulana Sahab. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक पेश करता हूँ कि इलाका हुकूमत इस्लामाबाद तक इतलाक़ की बाबत नाश्ता इश्तहारात का इम्तना 1 अक्टूबर 1963 में मज़ीद तरमीम करने का बिल नाश्ता इश्तहार का इम्तना तरमीम बिल 2022 पेश करने की इजाज़त दी जाए। जी ये बता दे मौलाना साहब कि बिल क्या है। मेरा ये बिल इस्लाम के उसूलों के मुताबिक तमाम पाकिस्तानियों की बहनें, बेटियां और माई की इज़्ज़त को बहाल करना चाहता हूँ, क्योंकि इस बिल में वही इश्तिहारात की निशानदेही की गई है जो हम टीवी पे देखते हैं, जो कि रोज़मर्रा हमारा उससे वास्ता भी बनता है। हम अपने घरों में बेटियों और बहनों के साथ बैठे होते हैं और टीवी पे इश्तहारात आते हैं कि हमारे आंखें बंद हो जाते हैं और हमारी आंखें बिल्कुल उसी तरफ ध्यान भी नहीं रख सकते हैं। तो इस्लामी माशरा में हम बैठे हैं, पाकिस्तान भी इस्लाम के नाम से आज़ाद हुआ था और हर एक मेंबर ये चाहता है कि हमारी बेटी, हमारी बहन ऐसा इश्तहारात न देखे। लेकिन अफसोस से बात कहना पड़ता है कि हम फिर भी इस पे कोई जुर्माना नहीं लगाते हैं। इस बिल में तो है, इसके लिए एक कानून है, लेकिन वो सज़ा का तयन भी नहीं है और इस तरह सज़ा का तो तयन है, 6 महीने इसमें लिखा है और जुर्माने का कोई तयन नहीं है। इस तरह आप खुद सोच ले, हदीस पाक में आते हैं कि जहन्नम में 3-4 बंदे ऐसे आएगा जहन्नम में कि अवल जहन्नमी लोग उनसे माजरत करेंगे कि खुदारा आप हमसे निकल जाइए, आप लोगों की वजह से हमें भी बहुत ही सख्त अज़ाब मिल रहा है। उन तीनों में से एक वही है जो इन इश्तहारात से मज़ा लेते हैं। तो हम अस खुद अपने आप को जहन्नम की वही कंध में डालना, वही अज़ाब में मुब्तला करना चाहते हैं। तो लिहाजा मैं ये चाहता हूँ कि इस बिल में तरमीम करके, क्योंकि ये रियासत मदीना भी है, रियासत मदीना में अगर इस तरह इश्तहारात चलते हैं तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। इस तरह ये कितनी अफसोस की बात है कि हमारा बहनें और बेटियां इश्तहारात के लिए टिशू की तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हम उनकी इज्जत चाहते हैं। उसकी अलीवत खान साहब, अलीवत खान साहब। बहुत शुक्रिया। मोहतरम जमालुद्दीन साहब ने जो बिल पेश किया है, इस पे शायद हमारे कोई मेंबर बात भी करना चाहते हैं, लेकिन मैं मिनिस्ट्री की तरफ से पहले मौक़िफ़ दे दूं, फिर आप अगर अलाउ करते हैं। तो सबसे पहले तो जनाब स्पीकर साहब, जिस तरह इन्होंने मदीना की रियासत की बात की है, तो मदीना की रियासत हमने अभी बनाई नहीं है, ना बन सकती है, लेकिन हम उसकी तरफ एक सफ़र तय कर सकते हैं जो आपके और हमारे वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने जो बुनियादी स्टेप किया है, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी जो पहली बार 70 साल में पाकिस्तान में उन्होंने बनाई है, ये उस तरफ एक पेश कदम है। और हमारे ऑनरेबल मेंबर साहब की जान के खुशी होगी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो उनका एक आर्टिकल अभी कल ही छपा है एक इंटरनेशनल लेवल के अखबार में, पाकिस्तान के अखबार में, कि उन्होंने उसवे हसना और रियासत को इस्लाम के मुताबिक मदनी रियासत के तर्ज पे चलाने के लिए क्या उसूल होने चाहिए, और कि एक रियासत जो है वो इस्लाम के मुताबिक वेलफेयर स्टेट कैसे होगी, और हुकूमत चलाने में सियासत में इस्लाम का, कुरान का कितना अमल दखल होना चाहिए। और उसके लिए हमारे सामने जो मिसाल है वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और मदनी रियासत है। इस सिलसिले में ऑलरेडी आपकी हुकूमत इक़दामात ले रही है, तजावीज़ इनकी मुनासिब है, इनको कमेटी में भेज दें, वहाँ उस पर तफसील से डिस्कशन हो जाएगी। इस स्टेज पर हम इसको सपोर्ट करते हैं। जी Minister for Law and Justice, now I put the
put the motion to the House. The question read that the leave to introduce a bill further to amend the constitution. Sorry, ये नहीं है. ये कौन सा है? जी, Minister. The question read the leave to introduce a bill further to amend the Indecent Advertisement Prohibition Act 1963 in its application to Islamabad Capital Territory. The Indecent Advertisement Prohibition Amendment Bill 2022 be granted. All those in favor are to say aye. All those against say no. I think ayes have it. The leave to introduce the bill is granted. Item number 10. जी जमालुद्दीन साहब, मूव करें मोशन को. इस बिल में सिर्फ इतना इजाफा मैं करना चाहता हूँ कि इसकी जो जुर्माना है इसको जितना इश्तिहारात से कमाई की जाती है उसके बराबर कर ले और उसका जेल का जो जुर्माना है उसको 2 साल तक कर ले. जो इसके खिलाफ आप वो मोशन मूव करवा दे. मोशन मूव करवा दे. टाइटल पढ़ दे. टाइटल बिल का टाइटल पढ़ दे. चलो मैं तहरीक पेश करता हूँ कि इलाका दार हुकूमत इस्लामाबाद तक इतलाक के बाबत नाइस्ता इश्तहार का इम्तना 1963 में मज़ीद तरमीम करने का बिल नाशाइस्ता इश्तहारात तरमीम बिल 2021 पेश करता हूँ. शुक्रिया जी. The bill in question is introduced. जी आइटम नंबर 11 वो हाउ कमेटी में चला गया है. कमेटी में चला गया मिस्टर कादर खान मंदोखेल जी डिफर कर रहे हैं. आइटम नंबर 13 सईद हुसैन तारिक नॉट प्रेजेंट. डिफर करते हैं इसको जी. आइटम नंबर 15 मिस्टर किस्मलदा नहीं है. आइटम नंबर 17 मिस उस्मा रियाज प्लीज. Thank you, Ji. I rise to move for leave to introduce the bill to develop the mechanism for making the tuberculosis TB cases notification mandatory in the Islamabad Capital Territory and restricting the over-the-counter sale of the anti-tuberculosis medicine, the ICT Tuberculosis Notification Bill 2022. Minister Sahab, do you oppose it? जी नौशीन आमिद जी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, वजाहत कर दें ये क्या चाह रही हैं. जी मैडम प्लीज. उस्मा रियाज. थैंक यू स्पीकर साहब. स्पीकर साहब मसला ये है कि इस वक्त पाकिस्तान 5th डिजीज़ बर्डन कंट्री हो चुका है ट्यूबरक्लोसिस में और अभी तक हमारे पास कोई डेटा मौजूद नहीं है जिसकी वजह से सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो मरीज़ आते हैं उन मरीज़ों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती और जब मेडिसिन्स के लिए किसी भी मेडिकल स्टोर के ऊपर मरीज़ जाते हैं मेडिसिन लेने के लिए तो उनको बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन के भी वो मेडिसिन्स मिल जाती हैं जिसकी वजह से हमारे पास अभी तक टीबी का एक डेटा मौजूद नहीं है कि किसी भी प्लानिंग में या उनके लिए कुछ काम किया जाए उस वो डेटा पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार किया जाता है. तो मैं ये चाहती हूँ कि जो हमारी मिनिस्ट्री है वो टीबी के जितने भी मरीज़ हैं इस्लामाबाद टेरिटरी में उनका डेटा बनाया जाए और जिस तरह से हमारे वज़ीर ख़ारजा भी यूनाइटेड नेशन गए थे और उन्होंने ये कमिटमेंट की है कि 2030 तक हम इंशाल्लाह टीबी पे कंट्रोल हासिल कर लेंगे. तो उसके लिए जी मैं ये चाहती हूँ कि इस चीज़ को मैंडेटरी किया जाए कि जितने भी टीबी के मरीज हैं उनका डेटा कलेक्ट किया जाए. थैंक यू. डॉक्टर नौशीन आमिद. ये एक अच्छा बिल है और ये वक्त की ज़रूरत है क्योंकि टीबी को अगर हमने कंट्रोल करना है तो उसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए डाटा बहुत ज़रूरी होता है. तो मैं इसको सपोर्ट करती हूँ जी. कमेटी को भेजती हूँ. जी now I put the motion to the House. The question is due to introduce a bill to develop mechanism for making tuberculosis B case notification mandatory in the Islamabad Capital Territory and restricting over the counter sale of anti-tuberculosis medication. The ICT Tuberculosis Notification Bill 2021 be granted. All those in favor of to say aye. All those against say no.
I think ayes have it and leave to notice the bill is granted. Item number 18. Usman Riaz, please, to move item number 18. Thank you, sir. जी I introduce a bill to मैं ये develop. वो कर लूँ जी जी, sir. मैं ये फाइनल कर लूँ जी I introduce a bill to develop the mechanism for making the tuberculosis case notification mandatory in the Islamabad Capital Territory and restricting over-the-counter sale of anti-tuberculosis medicine, the ICT Tuberculosis Notification Bill 2022. जी the bill in question stand introduced. चौधरी अशरफ साहब है जी जी चौधरी साहब चौधरी अशरफ साहब अपनी सीट पे जाएं जी अपनी सीट पे यही माइक खुलवा दे भाई यही माइक खुलवा दे जी 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 प्लीज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जनाब स्पीकर शुक्रिया अगर आपको रहम आ गया तो टाइम मिल गया मसला ये है कि हमारे पंजाब में सालम सूबे में खाद नहीं मिलती गंदम को डालने के लिए यूरिया खाद नायाब हो गई जबकि यूरिया की पैदावार पाकिस्तान के अंदर होती है मुझे अफसोस से करना पड़ता है कि ये पहली आउटपुट ही नहीं है सबसे इब्तदाई आउटपुट जो है वो है इनपुट जो है वो है डीज़ल की कीमतें आसमान को टच कर रही हैं और दूसरी बात है ट्यूबवेल से आपाशी होती है जो नहर का पानी कम है कई जगह दस्तयाब नहीं है और ट्यूबवेल बिजली पर चलते हैं 5 रुपये 35 पैसे उसका रेट होता था आज उसकी रेट क्या मैं अर्ज़ करूं कि 1 लाख रुपया 80,000 रुपया 1.25 लाख रुपया 1.5 लाख रुपए तक बिल आता है ट्यूबवेल का उसमें ट्रिपल टैरिफ है उसमें आपका फ्यूल एडजस्टमेंट है फ्यूल कंजक्शन है फ्यूल कंजम्पशन भी है और अगर फ्यूल की कंजम्पशन की पेमेंट भी काश्तकार ने करनी है तो बाकी रह क्या जाता है हर चीज़ काश्तकार के लिए कोई तवज्जो नहीं दे रहा इस तरफ इसलिए मजबूर होकर आज चीखो पुकार कर रहा हूँ कि खुदा का नाम लें इनको कोई अकल सिखाएं इनको कोई होश दिलवाएं ताकि एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाया जा सके और ये जो बाहर से कर्जे लेते हैं ये जो लोन लेते हैं इसकी कोई हैसियत नहीं है एग्रीकल्चर के सामने एग्रीकल्चर की कैफियत ये है कि जब पहली बार हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान लियाकत अली शहीद अमेरिका तशरीफ़ ले गए तो वहाँ अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से प्रेसिडेंट ट्रूमन थे प्रेसिडेंट ट्रूमन उनको एयरपोर्ट से रिसीव करके लेके गए और बड़े इज़्ज़त एहतराम से उन्होंने अपनी तरफ से जो स्पीच करनी थी उसका मतन भेजा उसमें ये लिखा था कि पाकिस्तान इज़ ए न्यूली बॉर्न डेमोक्रेटिक स्टेट एंड देयरफॉर वी लव डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक स्टेट की डिमांड जो हैं वो हम पूरा करेंगी और हमने फैसला किया है कि पाकिस्तान में बैंकिंग नहीं है पाकिस्तान में इंडस्ट्री नहीं है और हकीकत यह है कि हमारे पाकिस्तान भर में कोई इंडस्ट्री नहीं थी थैंक यू जी वाइड अप कर ले प्लीज की शुगर मिल सतलुज काटन सॉरी कपड़े की मिल सतलुज काटन मिल उकाड़ा आई थी और वो भी हिंदू की जायदाद थी और उसके बाद गन्ने की एक राह वाली में फैक्ट्री थी उसकी भी कोई हैसियत नहीं थी बाकी कोई फैक्ट्री नहीं थी कोई इंडस्ट्री नहीं थी हमने एग्रीकल्चर पे बेस करते हुए अमेरिकन गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें कर्जा नहीं चाहिए जबकि उस वक़्त हमें तनख्वाहें देने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे लेकिन इसके बावजूद हमने एग्रीकल्चर का सहारा लिया और अल्लाह ताला ने बरकत डाली और आप यकीन कीजिए हमने PIDC लगाया PIDC की तरफ से मिलें लगाई प्राइवेट सेक्टर को फ्लोट की गई हम कपड़े की
पैदावार में दुनिया की मार्केट पे छा गए। और 1958 तक जब पहला मार्शल लॉ अयूब खान साहब ने लगाया, उस वक़्त तक एक पाई हमने कर्जा नहीं ली थी किसी से। हम सब सफिशेंट थे एग्रीकल्चर के सहारे पे। आज भी एग्रीकल्चर को तवज्जो दी जाए तो हमें किसी IMF की ज़रूरत नहीं होगी, किसी कर्जे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अब गंदम की फसल बर्बाद हो गई, अब उसको खाद भी नहीं मिल रही, तो क्या होगा? गंदम कहाँ से लाएंगे हम? बाहर से हम इंपोर्ट करेंगे। आलिया हमजा प्लीज रिस्पॉन्ड कर लीजिए। आलिया हमजा प्लीज। स्पीकर साहब, उनका कॉल अटेंशन भी ले लें, उनका कॉल अटेंशन इनका कॉलिंग अटेंशन भी इसी टॉपिक पे है, पे उनका कॉल इसी पे टॉपिक पे, तो इसका कॉलिंग अटेंशन भी लेते हैं। आइटम नंबर कौन सा है? आइटम नंबर 173 प्लीज। नवीद कमर साहब, आपने मेरे ख्याल में एजेंडा नहीं पढ़ा था। नहीं, आपने मुझे फोन किया था, फिर क्या आपने? जी प्लीज, जी शाजिया भाई प्लीज। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। ऑनरेबल मेंबर ने जो ज़राअत के हवाले से बात की है, हम उसे एंडोर्स करते हैं मुकम्मल तौर पर, और आज इस पर आइटम नंबर 173। आइटम नंबर है सर, मैं पढ़ रही हूँ। It is to invite attention of the Minister for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding acute shortage of urea fertilizer in the country, causing grave concern amongst the public. जी, आलिया हमजा, a brief statement please. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू ऑनरेबल स्पीकर साहब एंड थैंक यू ऑनरेबल मेंबर्स। मैं दोनों मेंबर्स का शुक्रिया अदा करती हूँ, बिकॉज ये मुझे लगता है कि अवामी मसाइल की बात है और हमें अवामी मसाइल पर ही यहाँ बात करनी चाहिए। अगर मुझे आप सिर्फ 1 मिनट दे दें विद परमिशन ऑफ मैम, जो हमारी ऑनरेबल मेंबर साहिबा हैं शाजिया मरीज साहिबा, मैं पहले अपने इन ऑनरेबल मेंबर का जवाब दे दूँ। सर, छोटी सी बात है, इन्होंने बात शुरू की थी एग्रीकल्चर से, उसके बाद ये आ गए थे टेक्सटाइल्स के ऊपर। एक लाइन में मैं टेक्सटाइल्स का जवाब दे देती हूँ। 2016 के अंदर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, कुछ ज्यादा कोट नहीं करूंगी, कोड़ियों के भाव लू में बिक रही थी, कोई 60 रुपए केजी बिक रही थी, वहां पर ये हालात थे। इस वक्त ये है कि सिर्फ फैसलाबाद के अंदर 1 खरब की, फेडमिक ने 1 खरब की इन्वेस्टमेंट की है और टेक्सटाइल सेक्टर इस वक्त रिकॉर्ड प्रोडक्शन दे रहे हैं दिसंबर के अंदर, और अभी हमारा सिर्फ आधा साल हुआ है और आधे साल के अंदर हम रिकॉर्ड टेक्सटाइल प्रोडक्शन दे रहे हैं। ये तो टेक्सटाइल्स के हालात हैं। एग्रीकल्चर के मैं फैक्ट्स पे सिर्फ बात करूंगी और फिर मैं यूरिया पर आ जाऊंगी। बात इन्होंने की थी, देखिए हम तो ये कह ही नहीं रहे, एग्रीकल्चर बैकबोन है इस मुल्क की, कहीं कोई इस चीज को डिनाई कर ही नहीं रहा, लेकिन इतना है कि जब आपको एक चीज मिल रही है एग्री इंपोर्ट बेस्ड मिल रही है और आज आप उसको एग्री एक्सपोर्ट बेस्ड या एग्री सफिशिएंट बेस्ड में करें, तो जाहिर है हुकूमत कुछ ना कुछ तो कर रही होगी। फिगर्स बोलते हैं हमेशा, राइस की पैदावार पिछले साल 7.4 मिलियन टन थी, इस वक्त 8.4 मिलियन टन की पैदावार है, जो हम एक्सपेक्ट करें 8.8 टन हम अचीव कर लेंगे। मेज की जो पिछले साल 7.9 मिलियन टन थी, इस साल 8.5 मिलियन टन की प्रोडक्शन होगी। वीट पिछले साल 25.2 मिलियन टन थी, इस साल 27.5 मिलियन टन से एक्सपेक्टेडली 28.9 मिलियन टन होगी, और ये हम आपको बता रहे हैं कि होगी। इंस्टेड ऑफ कि मैं यूरिया पर आती हूँ, ऐसा होने लगा है। शुगर केन इज एक्सपेक्टेड टू बी 87.7 मिलियन टन, लेकिन अगर ये कहें इस वक्त शुगर केन के काश्तकार को, जो गंदम का काश्तकार है, पूरे पैसे मिल रहे हैं, 80 रुपए, इन्हें पता है 80 से 130 रुपए गन्ने के काश्तकार को मिलते थे, आज उसको 250 से 300 रुपया गन्ने का मिल रहा है। इसी तरह गंदम के काश्तकार की स्पोर्ट प्राइस 1300 थी, आज उसकी 1850 रुपए। सर, यही चीजें शो करी हैं कि किसान ज्यादा एग्रीकल्चर की तरफ जा रहे हैं। आज तक वो मुल्क जो बिल्कुल हम वीट भी बाहर से मंगा रहे हैं, शुगर केन भी, इस दफा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से हमें नहीं मंगवानी पड़ेगी। वीट अगर मंगवानी पड़ेगी तो कम क्वांटिटी में, और शुगर केन के लिए हमें शुगर बाहर से नहीं मंगवानी पड़ेगी। यही फर्क आया है इन 3 सालों में। अब आ जाए जो हमारी यहाँ पर बात हुई है यूरिया के ऊपर। सर,
सर मैं यूरिया के ऊपर 3-4 बातें करना चाहूंगी। 2009 से रिकॉर्ड यूरिया की प्रोडक्शन हुई है, रिकॉर्ड यूरिया की प्रोडक्शन हुई है। यूरिया की सेल इस अरसे के अंदर 5% बढ़ी है। हमने एक्स्ट्रा यूरिया के जो थे आज तक वो चलवाने के लिए हमने उसको एक्सपोर्ट का दर्जा देकर हमने यूरिया की फैक्ट्रीज को चलवाया है, क्योंकि हमें ये पता था कि हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को सफ़र नहीं करने देना। यूरिया के इस्तेमाल में 5% इजाफा हुआ है। ये एडवर्टाइजमेंट है, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट नहीं है, हुकूमत पाकिस्तान का एडवर्टाइजमेंट नहीं है, ये जो फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान है उनका है। वो ये कह रहे हैं कि हुकूमती इक़दामात की वजह से खाद की रिकॉर्ड पैदावार है। पाकिस्तान में ये जो चीज़ हो रही है, पाकिस्तान की 1 फी बोरी जो प्राइस है वो इंटरनेशनल मार्केट से 6 गुना सस्ती है, 6 टाइम्स चीपर देन इंटरनेशनल मार्केट। यूरिया की खाद के इस्तेमाल में 5% इजाफा हुआ है। किसानों को रवा मार्च के अंदर खाद की 1 करोड़ 20 लाख की बोरियों की फराहमी की गई। ये सर यूरिया की सिचुएशन है, और जब बात आएगी और ये अगले सवाल करेंगे तो मैं उस पर इनको फर्दर बता दूंगी। मैडम आप तशरीफ बाहर ले जाएं प्लीज आप तशरीफ ला जाएं, आप माइंड ना करें, लेकिन प्लीज आप नहीं, मैं उसको सब क्वेश्चन शाजिया मरी टू आस्क वन क्वेश्चन। शुक्रिया स्पीकर साहब, इतना कुछ सुनने के बाद अगर आप थोड़ी से मुझे भी मौका दे दीजिएगा। सर अव्वल तो ये कॉलिंग अटेंशन जो है मुझे ये इजाज़त नहीं देता था कि 5 अरकान से ज़्यादा के सिग्नेचर हों, लेकिन ये इशू ऐसा है कि इसमें आज ऐवान में जितने मेंबर्स बोलेंगे कम होगा। मेरी आपसे गुजारिश होगी कि इसके बाद भी अरकान को मौका दीजिएगा कि यूरिया की जो शॉर्टेज इस मुल्क में है और जिसके लिए किसान सरापाए एहतजाज हैं, आज सड़कों पर आ गए हैं, उन मेंबरान को टाइम दीजिएगा कि वो इस पर बात कर सकें। सर जो ऑनरेबल मेंबर ने फरमाया और जो उन्होंने कहा कि नंबर्स बोलते हैं, सर काश ये नंबर्स वो किसान भी समझ पाते जो आज सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। आज ये नंबर्स वो किसान पढ़ पाते, क्योंकि सर आज हालात मुल्क के ज़राई एतबार से वो नहीं है जो यहाँ पर ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी फरमा रही थी। आप भी जानते हैं सर, ये मसला सिर्फ एक जमात का नहीं है, ये मसला सिर्फ एक सूबे का नहीं है, ये मसला पाकिस्तान के मेहनत कश किसानों का मसला है। आज पाकिस्तान का किसान सड़क पर लाइनें लगाकर यूरिया की तलाश में है। कहीं उसे ब्लैक में 3200 रुपए की बोरी मिल रही है तो कहीं 3500 रुपए की बोरी मिल रही है। आज जो ज़राई क्राइसिस पाकिस्तान में बरपा हुआ है वो पाकिस्तान की तारीख में कभी बरपा इस तरीके से नहीं हुआ। ऑनरेबल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा ने रिकॉर्ड्स की बात की है। सर बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड इस हुकूमत ने तोड़े हैं। ये रिकॉर्ड ही तोड़ा है जो पहली मर्तबा चीनी आपको बाहर से मंगानी पड़ी है। ये रिकॉर्ड ही तोड़ा है जो आज किसान दर बदर घूम रहा है लेकिन उसे यूरिया की 1 बोरी भी ब्लैक मार्केट में तक नहीं मिल रही है। आप भी तकरीर करिए। सर मैं तकरीर सुन के तकरीर कर रही हूँ सर, तकरीर सुनी तो कर रही हूँ। आज ट्रेड डेफिसिट 30.7% को आपने पिछले बरस के निस्बत पहुंचा दिया जो 23 बिलियन था। मेरा सवाल यह है सर कि यूरिया की शॉर्टेज है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, इसमें कोई शक नहीं है, और इस शॉर्टेज का जो इम्पैक्ट है वो आपकी आगे की कल्टीवेशन पर पड़ने वाला है और हम फूड इनसिक्योरिटी की तरफ खुदा न खास्ता जा रहे हैं। मेरा सवाल पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी साहिबा से ये है कि मैंने आपकी तमाम बातें सुन ली, मैं फिगर्स को नहीं मानती, मैं किसान की एहतजाज को देख रही हूँ, मैं एग्रीकल्चर के क्राइसिस को देख रही हूँ। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि बावजूद आपके दावों के, बावजूद आपकी रिकॉर्ड प्रोडक्शन के दावे जो मिनिस्टर साहब यहाँ मौजूद होने चाहिए थे यूरिया के इशू पे, वो मौजूद नहीं है, ये भी अफसोस है। बावजूद उनके किए गए दावों के क्या वजह है कि उकाड़ा हो, मुल्तान हो, सांगड़ हो, ठट्ठा हो, बलोचिस्तान के इलाके हो, केपी हो, क्या वजह है
کہ آپ کا کسان آج در بدر یوریا کے بیگز کی تلاش میں گھوم رہا Thank you ہے. جی. ہمیں یہ بتایا جائے. جی عالیہ حمزہ ملک پلیز. تھینک یو اسپیکر صاحب اینڈ تھینک یو آنریبل ممبر. بڑی اچھی انہوں نے باتیں کی اور بڑی اچھی انہوں نے تقریر بھی کی, اور انہوں نے کہا فگرز کو یہ نہیں مانتی. میں تو یہ کہیں نہیں رہی مانے یا نہ مانے, میں تو اب جس بات پر آ رہی ہوں ان کو اس سے تو ماننا پڑے گا, وہ تو ایک لاجیکل بات ہے, چلیں فگرز نہ مانیں گے. ربی سیزن 2021 اور 22 ویٹ کی کراپ کلٹیویٹ ہو چکی ہے. تقریباً ہمارا ٹارگٹ تھا 23.3 ملین ایکڑ کے اوپر, ہم تقریباً کوئی مور دین 98% اس وقت تک اچیو کر چکے ہیں. پہلی پانی کی جو لگتی ہے نا, پہلی پانی کے اوپر ربی کی فصل کو یوریا لگتا ہے, یہ تو ایک لاجیکل بات ہے نا. تو پہلی پانی لگ چکا ہے, یوریا کی فصل ربی کی فصل کے لیے جو جتنا یوریا چاہیے تھا نا کسان اس کو ڈال چکا ہے. اب بات ہو رہی ہے سیکنڈ سٹیج کے اوپر. ایک منٹ پہلے مجھے پوری بات کر لینے دیں. ہو کیا رہا ہے سر, یہ جو سارا جب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں نا, ایشو کیا ایشو ہوتا نہیں, ایشو بن جاتا ہے. ہوا یہ ہے کسان کے پاس پیسے زیادہ تھے, اس کو ہر چیز ملی. 1100 ارب روپے ہم ایگریکلچر اکانومی کے اندر ہم نے ڈالا ہے. ہم جو بار بار بات کرتے ہیں, ایک بوری لینی تھی 5 بوریاں لی گئیں. یہاں پر ڈی اے پی, بات تو سن لیں, اس کے بعد ڈی اے پی, میں بات کر لوں, آپ لوگ سب اپنی باری. ڈی اے پی کی جو ڈی اے پی ڈالتا ہے کسان, نو کراس ٹاک پلیز. جی پلیز پلیز سر مجھے بات کر لینے دیں, اس کے بعد یہ لوگ بات کریں. میں اس وقت سیاست پہ نہیں آ رہی تھی, لیکن مجھے انہیں کہ بات کرنے دیں. بات صرف اتنی ہے, کسان جو ہے, کسان کی بات ہو رہی ہے تو کسان کی بات تک رہنے دینا. ڈی اے پی پورے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کی پرائس بڑی ہے, باہر سے منگوانا پڑتا ہے. کسان کو ایجوکیٹ کریں. آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں, ایک بوری ڈی اے پی کی ڈلتی ہے اور 2 بوریاں اگر یوریا کی ڈلتی ہیں تو آلریڈی ایک بوری کی جگہ 4 بوری. وائنڈ اپ کر لیں جی, وائنڈ اپ کر لیں, وائنڈ اپ کر لیں. سر آپٹیمل یوز آف یوریا ہو رہے, 5% زیادہ یوریا اس وقت لوگ استعمال کریں. یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ ڈی اے پی زیادہ ڈالنے سے یوریا والی پراپرٹیز نہیں پوری ہوں گی. ہم صرف